Hello students, I Shakti Kumar, lecturer chemistry. Today going to start a topic from unit 3rd of 11th class chemistry, that is classification of elements and periodicity in properties. The topic is periodic properties of elements, part 1. In this part, I will explain to you the trends in physical and chemical properties of elements. Thereafter, we'll talk about atomic radius and we'll cover covalent radius, van der Waal radius, inert gas radius, metallic radius, and variation of atomic radius in periodic table. Thereafter, we will talk about ionic radius and its variation in periodic table. Now let's start the topic periodic properties. What are periodic properties? Periodic properties are directly or indirectly related to their electronic configuration and show a regular gradation. What does it mean? जो periodic properties हैं वो या directly या indirectly इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ रिलेटेड हैं और वो एक रेगुलर ग्रेडेशन मतलब रेगुलर चेंजेस शो करती हैं इन सीरीज ऑफ स्टेजेस. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वो चेंजेस शो करती हैं ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड और फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. जैसे हम पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो पीरियडिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या करती हैं, रेगुलर चेंजेस शो करती हैं. या फिर हम टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो भी वो चेंजेस शो करती हैं. तो सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर नोन एज पीरियडिक प्रॉपर्टीज. Some important periodic properties are: first is atomic radii, then is ionization enthalpy, then electron gain enthalpy, then electronegativity and valency, density, melting and boiling point. These are some important periodic properties and we will discuss all these properties. Let's first discuss about size of an atom. Size of an atom is expressed in terms of following parameters. What are the parameters? First is atomic radius. Second is covalent radius. Third is van der Waals radius. And then next is metallic radius. Thereafter, we'll talk about screening effect. So, let's start. Let's talk about atomic radius first. Atomic radius is the distance between the center of the nucleus to the outermost shell containing electrons. Here we can see an atom. This is the center of the nucleus. This point is center of the nucleus and this is the atomic radius from center of nucleus to the outermost shell containing electron. This is the outermost shell which contains electron. So this is our atomic radius. So atomic radius क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर से न्यूक्लियस के सेंटर से लास्ट शेल तक
लास्ट शेल तक का डिस्टेंस। अब क्योंकि एटम का जो साइज है वो कैसे डिफाइन करते हैं, बाय द एज ऑफ इट्स ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन है। होwever ऑर्बिटल की जो बाउंड्रीज हैं दैट आर फजी। ऑर्बिटल की बाउंड्रीज जो हैं वो क्लियर नहीं है, बाउंड्रीज आर अनक्लियर, इनडिस्टिंक्ट। इसलिए क्या करते हैं, इनफैक्ट आर वेरिएबल अंडर डिफरेंट कंडीशंस। और वो जो बाउंड्रीज हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट हो सकती हैं। तो इन ऑर्डर टू स्टैंडर्डाइज द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन the nuclei of two identical atoms bonded together is made। तो अब क्योंकि एक एटम की जो बाउंड्रीज हैं वो उतनी क्लियर नहीं होती हैं, क्योंकि एटम जो है, एटम इज स्फेरिकल, तो इसलिए उसकी बाउंड्रीज जो है वो अनक्लियर हैं, इनडिस्टिंक्ट हैं। इन ऑर्डर टू स्टैंडर्डाइज द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन the nuclei of two identical atoms bonded together is measured। जैसे हम देखते हैं, atomic radius is defined as one half the distance between the nuclei of identical atoms that are bonded together। क्या है atomic radius, क्या है, defined as one half the distance between the nuclei of identical atoms that are bonded together। दो एटम जो हैं वो आइडेंटिकल हैं और बिल्कुल पास पास है, बॉन्डेड टूगेदर है, तो उनका जो हाफ होगा, हाफ दोनों के न्यूक्लियस के सेंटर से अगर एक लाइन ड्रा करें तो जो हाफ होगा वो दैट विल बी द रेडियस। ये इसका रेडियस होगा। The atomic radius r of an atom can be defined as one half the distance d between two nuclei of an diatomic molecule। तो एटॉमिक रेडियस हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो जो नियरेस्ट एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस से अगर एक लाइन ड्रा कर की जाए, उसका जो हाफ है दैट विल बी द रेडियस ऑफ एन एटम। यूनिट्स फॉर एटॉमिक रेडियस आर पिकोमीटर्स। तो एटॉमिक रेडियस को हम किस में मेजर करते हैं, पिकोमीटर्स में, और which is equal to 12 raised to minus 12 pico। The units for atomic radius are picometers and equal to 10 raised to power minus 12 meters। अब एक एग्जांपल लेते हैं, an example of internuclear distance between two hydrogen atoms। दो हाइड्रोजन एटम्स लेते हैं, तो ये दो हाइड्रोजन एटम ले लिया हमने, इनका जो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 74 पिकोमीटर। तो अब इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा, हाफ, दैट इज 37 पिकोमीटर। नाउ कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, जब दो एटम सेम एलिमेंट के कोवेलेंटली बॉन्डेड हों तो उनके न्यूक्लियस के बीच के या डिस्टेंस है उसका हाफ is the covalent radius। Covalent radius is one half the distance between the nuclei of two covalently bonded atoms of the same element in a molecule। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हो, ये दो एटम हैं, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, इनके बीच जो अगर हम लाइन ड्रा करें इनके न्यूक्लियस के बीच में यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस होगा हाफ, this will be the radius of an atom। Now next is van der Waal radius। What is van der Waal radius? Van der Waal radius is one half the distance between the nuclei of two adjacent identical atoms belonging to two neighboring molecules। जब दो एटम्स दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के आपस पास हों, जैसे यहां पे देखो ये एक
एक मॉलिक्यूल है, ये वन मॉलिक्यूल, ये वन मॉलिक्यूल, ये सेकंड मॉलिक्यूल। अब दो मॉलिक्यूल्स जो हैं आइडेंटिकल हैं मॉलिक्यूल्स, इनके एटम्स भी आइडेंटिकल्स हैं, लेकिन ये नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं, इनके एटम्स जो हैं इंडिविजुअली वो कोवैलेंटली बॉन्डेड है। ये कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। लेकिन ये दो मॉलिक्यूल्स, ये दो आपस में पास पास हैं, तो इनके दो एटम्स अगर लें हम नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के, उनके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ ऑफ दिस विल बी वन डर वाल्स रेडियस। यहां से आप फिर से देख लो, कोवैलेंट रेडियस और वन डर वाल रेडियस इस डायग्राम में दोनों ही बताई गई हैं। ये जो है ये कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, ये कोवैलेंट रेडियस कितना होगा, हाफ ऑफ दिस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 198 पिकोमीटर, लेकिन रेडियस कितना है, 99 पिकोमीटर। लेकिन अब ये सेम सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल 1 एंड मॉलिक्यूल 2, ये एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनका एक एटम ये ले लिया मैंने, एक एटम ये ले लिया। इन दो एटम्स के, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 360 पिकोमीटर, 360 पिकोमीटर। लेकिन जब इसका हाफ करेंगे, that will be the van der Waals radius and which is equal to 180 picometers। तो फिर से एक बार देखते हैं हम van der Waals radius क्या है। van der Waals radius is 1/2 the distance between nuclei of two adjacent identical atoms belonging to two neighboring molecules in an element। The atomic radii of नोबल गैसेस, अब नोबल गैसेस की बात करते हैं, उनका एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है, और इनर्ट गैसेस का रेडियस क्या होता है, इनफैक्ट द van der Waals रेडियस, वो क्या होता है, van der Waals रेडियस होता है। सिंस दे डोंट फॉर्म मॉलिक्यूल, क्योंकि वो मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करती हैं, इसलिए नोबल गैसेस का या इनर्ट गैसेस का जो एटॉमिक रेडियस होता है दैट इज van der Waals रेडियस। That is why they are also called inert gas radii, इसलिए उनको inert gas radii भी बोलते हैं। Next is metallic radius। What is metallic radius? Metallic radius is 1/2 the internuclear distance between the two adjacent metal ions in a metallic lattice। दो metallic ions मेटेलिक लैटिस में हूं या मेटेलिक क्रिस्टल में हूं, उनका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका हाफ इज मेटेलिक रेडियस। तो दिस इज मेटेलिक रेडियस एंड इट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर ऑफ टू एटम। ये दो एटम्स हैं, ये दो एटम ले लिए, इनका ये दोनों न्यूक्लियर आ गए, ठीक है, तो इनके बीच का ये डिस्टेंस है, इसका जो हाफ है दिस इज द मेटेलिक radii। This is the distance between nuclei of two metallic atoms। So all these radii are measured by X-rays। सारे के सारे रेडियाई कैसे मेजर किए जाते हैं, एक्सरे से और other spectroscopic methods। Their relative values decreases in order। अब ये जो रेडियस हमने डिस्कस किए हैं ऊपर, इनकी रिलेटिव वैल्यू कैसे डिक्रीज होती है। सबसे बड़ा कौन सा रेडियस होता है, van der Waals रेडियस। van der Waals रेडियस जो है सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा है मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, और सबसे छोटा है कोवैलेंट रेडियस। अब बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। व्हाट इज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, इसको शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ये क्या है बेसिकली कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है जी। और दूसरी ओर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में, क्योंकि सेम चार्ज हैं, वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं।
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो जैसे ये अट्रैक्शन है, दिस इज अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, दिस इज अट्रैक्शन एंड दिस इज रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। सो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट इज आल्सो नोन एज द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। द फिनोमिनन which occurs when nucleus reduces its force of attraction on the valence electrons due to the presence of electrons in the inner shell। जब न्यूक्लियस जो है अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कम कर देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल। जैसे अब न्यूक्लियस जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी जो अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये शील्ड करेंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट नहीं होने देंगे। तो दिस इफेक्ट इज शील्डिंग इफेक्ट। सो स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट in which the nucleus reduces its force of attraction on the valence electrons due to the presence of electrons in the inner shell. This is known as screening effect. इसको screening effect बोलते हैं। अब क्या होता है, outer electrons experience charge from nucleus। outer electron जो है वो nucleus से charge experience करते हैं, मतलब nucleus उनको attract कर रहा है। and repulsion from the inner electrons। न्यूक्लियस तो आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनको रिपेल कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, एज द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस डिक्रीजेस, जैसे ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन जो डिक्रीज होती है, द रिपल्शन इंक्रीजेस। रिपल्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है the inner electrons and outer electrons। तो जो है अट्रैक्शन, जैसे ही न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन जो कम हुई, वैसे ही इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट होता है। अब एक और कंसेप्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? The first nuclear charge is the nuclear charge क्या है पहले? It is electrostatic force of attraction between nucleus and the electrons। electrons और nucleus के बीच में जो electrostatic force of attraction है, that is nuclear charge। Now as the size of atom increases, जैसे ही एटम का साइज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। और क्या होता है, जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होता है, शेल्स भी इंक्रीज होते हैं, which reduces the force of attraction between valence shell of electrons and the nucleus। इससे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में कम हो जाती है। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो हमने ऊपर पढ़ा। अब देखो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट में जो डिफरेंस है, दैट इज जेड इफेक्ट, जेड माइनस एस। एंड जेड क्या होता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है, और एस क्या है, एस इज द नंबर ऑफ शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, इट इज द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट न्यूक्लियस एक्सर्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। कितनी फोर्स जो है वो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने में लगाता है, दैट इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
Now let's start. The first property, that is variation in atomic radii in periodic table. As we know, the periodic table is divided into horizontal rows known as periods and vertical columns known as ग्रुप्स. ठीक है, तो पीरियडिक टेबल जो है वो रोज और कॉलम्स में डिवाइड हुआ होता है. जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल रोज, उनको क्या बोलते हैं? पीरियड्स. और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं लाइक दिस, दे आर नोन एज ग्रुप्स. अब जो पीरियड्स हैं, पीरियड्स में जो शेल्स हैं, नंबर ऑफ शेल्स वो सेम रहते हैं. नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होते हैं. ठीक है जी. ऐसे ही इन ग्रुप्स जो है नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम रहते हैं. Now first, variation within a group. Variation within a group. Group में क्या वेरिएशन आता है? The atomic radii of the element increases with increase in atomic number from top to bottom of a group. जैसे हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने केस लिया हुआ है एल्कली मेटल्स का, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम. तो इनका जब एटॉमिक रेडियस देख रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप. ऐसे ही अगर हम ग्रुप 17 हैलोजेंस को लेते हैं तो भी एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो इन ए ग्रुप atomic and ionic radii increase from top to bottom due to increase in the number of shells. जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम आते हैं, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज करते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट, और साथ ही स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है, जो मैंने आपको पहले बताया है व्हाट इज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट. तो क्या होता है? एक तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, और दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स. स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है इनर इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बढ़ती है और दैट्स व्हाई साइज इंक्रीजेस. तो मैंने आपको दोनों बताया. एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल के केस में आपने देखा कि साइड जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है. ऐसे ही इन हैलोजेंस भी साइज जो है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है. अब बात करते हैं इन ए पीरियड. In a period, the atomic and ionic radii of representative elements decreases significantly from left to right due to progressive increase in
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये हमने ऊपर पढ़ा। व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? तो पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक और आयनिक रेडिएशन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ये एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक को मिला के जो एलिमेंट्स आते हैं उन एलिमेंट्स को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इनकी बात कर रहे हैं कि इनका जो एटॉमिक और आयनिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है, कहां से? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जो है आयनिक और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? ड्यू टू प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। कैसे? जैसे देखो, हम बात करते हैं पीरियड सेकंड। पीरियड सेकंड में हम लेते हैं तो एलिमेंट्स जो है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो हम देखते हैं कि इनका जो है एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नोबल गैस को छोड़ दीजिए। और ऐसे ही पीरियड थर्ड में हम देख रहे हैं कि इनका भी एटॉमिक रेडियस सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन से जो है ये डिक्रीज हो रहा है। नोबल गैस की बात हम आगे करेंगे। तो अब हम एक ग्राफ देख लेते हैं यहाँ पे। अब देख लो, जैसे हम आते हैं लिथियम से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की तरफ, तो अगर हम ऑक्सीजन को छोड़ दें तो नाइट्रोजन को छोड़ दें तो ये कॉन्जिक्यूटिव क्या डिक्रीज शो कर रहा है एटॉमिक रेडियस में। Now the alkali metals which are at the extreme left of the periodic table have the largest size in the period. Largest size in the period. And whereas halogens 17th group, which are present at the extreme right of the periodic table, have the smallest size. However, in the second period, atomic size of nitrogen is smallest. नाइट्रोजन का जो साइज है सेकंड पीरियड में वो स्मॉलेस्ट है। आफ्टर नाइट्रोजन atomic size increases from oxygen and decreases for fluorine. ऑक्सीजन के लिए इंक्रीज हो जाता है लेकिन फ्लोरीन के लिए एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। Why this anomalous behavior of oxygen and fluorine? ऑक्सीजन और फ्लोरीन का ये anomalous behavior क्यों है? इसका रीजन है in nitrogen all the 3p orbitals have one electron each. When we move from nitrogen to oxygen, nuclear charge increases by 1, but at the same time, one of p orbital has no 2 electrons which repel each other. However, in case of oxygen, inter-electronic repulsion overweigh the effect of increased nuclear charge and hence atomic size increases from nitrogen to oxygen. On further moving from oxygen to fluorine, the nuclear charge further increases by 1. At the same time, 2 of p orbital have no 2 electrons each which repel each other. However, in case of fluorine, enhanced nuclear charge. Nuclear charge is enhanced in case of fluorine and which overweigh the effect of inter-electronic repulsion and hence size decreases from
oxygen to fluorine. Thus, the enormous behavior of oxygen and fluorine is due to combined effect of increased nuclear charge and inter-electronic repulsions. And the third point is the size of atoms of inert gases are, however, larger than those of preceding halogens. इनका जो है इनर्ट गैसेस का साइज जो है वो हैलोजन से बड़ा होता है. ऐसा क्यों? द रीजन इज in case of inert gases all the orbitals are completely filled. All the orbitals are completely filled. Hence, inter-electronic repulsion are maximum. Moreover, in case of inert gases, atomic size is expressed in terms of van der Waals radii, as I have told you earlier. Since they don't form covalent bonds, while in case of all other elements, the atomic size is expressed in terms of covalent radii. Thus, atomic size of an inert gas in a period is much higher than the preceding halogens, and this is the answer. So, इसका मतलब क्या हुआ कि इनर्ट गैसेस में एक तो ऑर्बिटल जो है वो सारे के सारे कंप्लीटली फिल्ड हैं, ठीक है, इसलिए उनका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो मैक्सिमम होता है, इस वजह से भी उनका साइज बढ़ता है. और दूसरा जो उनका जो रेडियस है वो कोवलेंट रेडियस नहीं है, वो रेडियस है उनका van der Waals रेडियस. दिस इज द रेडियस van der Waals रेडियस, तो जो जिसका साइज कोवलेंट रेडियस से बड़ा होता है. तो इसलिए जो इनर्ट गैसेस का रेडियस है वो हैलोजेंस के रेडियस से बड़ा होता है. देखिए इस टेबल में दिखाया गया है क्लियरली कि जैसे हम एक ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज जो है वो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है. ये देखिए साइज इनका इंक्रीज हो रहा है. हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इनका साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है. बाकियों का भी आप देख लीजिए, इनका साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है. ये हमने कौन से एलिमेंट्स लिए, वो सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. ऐसे ही अगर हम अलोंग द पीरियड चलें तो हम देखते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक तो साइज जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. लेकिन उसके बाद जब हम नोबल गैसेस की बात करते हैं, इनर्ट गैसेस की, इनका साइज इंक्रीज होता है. मैंने अभी आपको दो रीजंस बताए, उस वजह से इनका साइज जो है इंक्रीज होता है. तो अलोंग द पीरियड चलते हैं तो साइज डिक्रीज होता है. अलोंग द ग्रुप चलते हैं डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो साइज जो है वो इंक्रीज होता है. तो इसको हमने विद रीजंस क्लियर कर लिया. अब आगे चलते हैं. अभी जो हमने ऊपर केस देखा वो था रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, लेकिन अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो क्या, तो the size in transition elements the size does not change much since addition of electron takes place in penultimate d orbital. क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो आउटर मोस्ट शेल में ऐड नहीं होता है, वो पेनल्टीमेट शेल में ऐड होता है. दैट इज द शेल previous to the last one, the n-1d orbitals, इसमें वो ऐड होता है. और इसका रिजल्ट क्या होता है, the increase in nuclear charge is almost compensated with screening effect. अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज भी होता है तो वो कंपनसेट हो जाता है किसके साथ, स्क्रीनिंग इफेक्ट. मतलब कि एक दूसरे न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं. दैट्स व्हाई इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसलिए
ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो है साइज जो है वो ज्यादा चेंज नहीं होता है विद द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स में जाते हैं, और उसके रिजल्ट क्या आते हैं कि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कैंसिल कर देता है, कंपनसेट कर देता है किसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट को। बात करते हैं कैटाइन्स और एनाइन की। ये एक सोडियम एटम है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये बन जाता है एक कैटाइन। एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बन गया कैटाइन। अब क्या होता है कि सोडियम के पास अपने जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब ये कैटाइन बनता है एक इलेक्ट्रॉन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 10। और अब एटम के पास जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है, वो है +11 प्रोटॉन, क्योंकि इसके पास कितने हैं, 11, तो दैट्स व्हाई इट हैज +11 न्यूक्लियर चार्ज। और एटम के पास अगर +11 न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब उसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं, तो कैटाइन के पास भी +11 ही न्यूक्लियर चार्ज है। लेकिन हुआ यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज हो गए हैं, विद द रिजल्ट न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ गया है। तो इस वजह से अगर सोडियम का अपना जो एटॉमिक रेडियस था वो 186 पिकोमीटर था, तो उसका साइज अब रिड्यूस हो गया है, साइज रिड्यूस होके 95 पिकोमीटर हो गया है, ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अब जो है वो इंक्रीज हो गया है, तो उस वजह से उसका साइज जो है, कैटाइन का साइज जो है वो एटम के साइज से छोटा हो गया। अब देखते हैं हम, द रेडियस ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, while the radius of an anion is always larger than its parent atom। हमने अभी देखा कि कैटाइन का जो रेडियस है, कैटाइन का रेडियस है वो छोटा होता है उसके पेरेंट एटम से। तो ऐसे ही क्यों छोटा होता है, उसका रीजन हमने देखा कि न्यूक्लियर चार्ज उस पर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें एनाइन की, तो उस केस में मान लो क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन एटम अपने इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 17 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, प्लस इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसके अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए, और ये क्या बन गया, एनाइन। अब ये एनाइन बन गया है, जब तो ये एनाइन बन गया है, तो इसके पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो अभी उतना ही है, +17, और न्यूक्लियर चार्ज एनाइन के पास भी कितना है, +17। अब जो क्लोरीन का जो साइज है, एटॉमिक रेडियस है, वो कितना है, 99 पिकोमीटर, 99 पिकोमीटर इसका साइज है। लेकिन जब ये एनाइन बनता है तो उसका साइज जो है 181 पिकोमीटर हो जाता है, क्योंकि अब उस पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो गया एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं कि the radius of cation is always smaller than its parent atom, while radius of anion is always larger than its parent atom, due to the decrease in nuclear charge। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो गया, वहाँ पे इंक्रीज हो गया। अब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन से होते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर न्यूट्रल और आयनिक स्पीशीज। ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं या फिर आयनिक स्पीशीज भी हो सकते हैं, which have same number of electrons,
ये वो स्पीशीज हैं जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स तो इनके सेम है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो है इनके डिफरेंट है। The ionic radius of isoelectronic ions increase with decrease in magnitude of the nuclear charge। तो क्या मीनिंग है इसका कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं? वो स्पीशीज होते हैं जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक बात, और दूसरा बात है कि उनका क्या होता है? डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इन पे जो है वो डिफरेंट होता है। और तीसरी बात, आयनिक रेडियस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस इंक्रीज। इनका आयनिक रेडियस कब इंक्रीज करता है? जब इन पे जो है न्यूक्लियर चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कम होता है। जैसे ही इन पे न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो इनका आयनिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये जो है आप देख रहे हो ये सारे क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इनके सभी के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है लेकिन इनके न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिफरेंट होगा। चलिए एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स। द एटॉमिक रेडियस of atoms generally decreases from left to right across a period। पीरियड में क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है? लेफ्ट से राइट क्या होता है? डिक्रीज होता है। There are some exceptions such as oxygen radius being slightly greater than nitrogen। ये exceptions हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन का रेडियस जो है वो नाइट्रोजन से क्या होता है? बड़ा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के जो है वो p ऑर्बिटल में सिंगली फिल्ड होता है। ठीक है। और within a period protons are added to the nucleus। ठीक है। पीरियड में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं प्रोटॉन्स ऐड होते जाते हैं। एज इलेक्ट्रॉन्स बीइंग एडेड, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं वैसे वैसे प्रोटॉन्स भी ऐड होते हैं। द सेम प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, उसी प्रिंसिपल एनर्जी लेवल में दीज इलेक्ट्रॉन्स आर gradually pulled closer to the nucleus because of increased positive charge। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होते हैं? न्यूक्लियस अपने पास खींचता है क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचता है। सिंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स पे इंक्रीज होती है तो उससे क्या होता है? साइज जो है एटम का वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। द इफेक्ट लेसन्स एज वन मूव फर्दर ऑन टू राइट इन द पीरियड। लेकिन ये जो है इफेक्ट ये कम हो जाता है जब हम कहाँ जाते हैं? इनर्ट गैसेस की ओर। वहां मैंने आपको दो रीजन बताए कि एक तो उनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, उससे उन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाती है। और दूसरा वहां पे वो रेडियस जो है वो वंडर वाल रेडियस है, ना कि कोवलेंट रेडियस है। तो वंडर वाल रेडियस जो है वो कोवलेंट रेडियस से बड़ा होता है। दैट्स व्हाई इनर्ट गैसेस का जो एटॉमिक रेडियस है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू द अदर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब बात करते हैं ग्रुप में क्या ट्रेंड रहता है। तो ग्रुप की जब बात करते हैं तो द एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है जी। तो जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है विद इन ए ग्रुप। ठीक है।
तो इसका कारण मैंने आपको बताया, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप देयर इज अगेन एन इंक्रीज इन पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज। अब वहां पे एक तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है, शेल इंक्रीज होते हैं, और फिर पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। However, however, there are also an increase in number of occupied principal energy levels। ठीक है जी, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, एक तो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, वो शेल्स बढ़ते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन्स भी उनमें ऐड होते हैं, ठीक है, और दूसरा उनका पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज भी जो है वो इंक्रीज होता है। तो higher principal energy level consist of orbitals which are larger in size than the orbital from lower energy levels। तो क्या होता है कि higher energy levels जो है वो उसमें क्या है, वो ज्यादा बड़े साइज की हैं अपने लोअर एनर्जी लेवल्स से। तो द इफेक्ट ऑफ द ग्रेटर नंबर ऑफ प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स outweigh the increase in nuclear charge। तो इससे क्या होता है, उनका जो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स का जो साइज है वो बढ़ जाता है, ठीक है, वो स्प्रेड हो जाते हैं, उसकी वजह से वो जो न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है वो कम हो जाता है। सो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इस वजह से वो जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि उनके बीच में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। दैट्स व्हाई द साइज increases while moving from top to bottom in a group। That's all.